Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, you are watching Voice of Canada Urdu. Today we will discuss the global economic situation as well as the situation in Canada and in Pakistan. And I'm very delighted Mr. Shan Saeed is joining me from Kuala Lumpur, and I will ask him different questions on the investment and on different issues of the global situation, like pandemic is we are facing for the last 1 year. Assalamu alaikum, Shan Saab. Walaikum assalam, Munawar Saab. Thanks for having me in your show. First of all, please throw some light on the general global economic situation. What is happening in the world? At the moment, I think the global economy continues to stay volatile and the fragilities in the markets are still very strong. So, to expect the global economy to recover in a short span of time, I think it is not pragmatic. It will take much longer for global economy to recover. So, at July IQI, we expect global economy to recover by 24 or by 2025. And for some economies like Europe and even South America, it will take much longer because they have had poor response to this COVID-19. And those economies that have done fairly well are those which have done remarkably well in terms of policy response to this COVID-19. So we expect global economy to be fully in the recovery mode by 2025. So we expect some economies, especially Asian economies, China, ASEAN, to have a much better growth as compared to many economies in North America or even for that matter Europe. So China will be leading from the front, and we expect China to become the largest economy by 2025, leaving US in the second place. Right. And how do you see the Canadian economy? Munawar Sahib, at the moment, Canadian economy is picking up. The reason is very simple. Canadian government has always maintained macroeconomic stability. We have our office in Canada, in Toronto, July IQI, and what we have witnessed, the transaction volume, especially in the real estate market, has gone up by fourfolds. So it clearly signifies that the market participant and investors, they have confidence in Canadian economy. And with interest all-time low, look at HSBC mortgage rates. They are 0.99%. So it's an ideal time for those sophisticated and smart investors who understand history and economics to take position in real estate. And in these tough times, the only fixed asset that goes up is land. So we at July IQI, we are dealing with land. You are into the mortgage business. You understand how the market actually plays out. So I think the Canadian market will do much better. I won't expect the Canadian market to have a 3 or 4% GDP growth, but it will have an appreciable growth that will attract global investors. For global investors, the number one priority right now is how effective the governments are in controlling this pandemic. So Canadian, along with other ASEAN economies, have been quite effective in controlling this pandemic. As chief economist of Joy IQI Malaysia, and your company is all over the world, and you are a very honorable and very respected member of the Golden Pakistan International as well. How do you see the Pakistani situation, Pakistani economy, especially there was a debate on state bank autonomy. First of all, we will discuss the state bank autonomy. How do you see that? Munawar Saab, I have stated in many TV channels that my position is very clear. We cannot give outright autonomy to State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan remains a government entity. Not a single central bank in this world has got independence. I give you one small example of Federal Reserve. In 2018 and 2019, when the Fed chair Jerome Powell said, "I want to increase interest rate," the message was sent to him by President Trump,
you want to decrease interest rate or you want to go home. So the message has been very, very clear that government and central bank, they need to work together in collaboration in order to spur growth. Monetary policy and fiscal policy have become very important. An amalgamation of monetary policy and fiscal policy can provide growth in these challenging times. To say that I want autonomy and central bank has got nothing to do with the government, that is a fallacy. So I think, in my opinion, it is not just my opinion, it's the opinion of Dr. Hafiz Pasha, who is the president of Beacon House University. It is the opinion of Dr. Ashfaq Hassan Khan, Dean of NUST Business School in Islamabad. It is the opinion of Dr. Shahida Wizarat. She is a well-respected economist in Pakistan. So we are all on the same page that government should give autonomy, but it has to be the governor of State Bank of Pakistan has to be answerable to Pakistan, to Prime Minister, to the Finance Minister, not to the IMF or any World Bank institution. The challenge is, in the new bill that has come forward, it says the State Bank governor duration is from 3 years, it has moved to 5 years. Nobody can challenge the governor or the board of directors or any employee of State Bank in any court of law. How can you do that? According to my conviction, nobody is above law, including Chand Saeed or AFG or ABC. So every possible person who is holding an important position in government is responsible. I give you a very small example, the mistake the State Bank governor made in 2019 and 2020. And then when the pressure came, he started decreasing. From 6% discount rate, he took the discount rate to 13.25%. When all the central banks in the world were decreasing interest rate. In 2018, 47 central banks reduced the interest rate. In 2019, 45 central banks reduced the interest rate. In 2020, 37 central banks reduced the interest rate, including Pakistan. And I have been quite vocal on my social media, and I have sent messages to Imran Khan on Twitter that this governor doesn't know the ground realities of Pakistan. The businesses cannot survive at 13.25%. Imagine, आपकी cost जो है वो 15% से ऊपर है, आप किस तरह अपना IRR लेके आएंगे, किस तरह प्रॉफिट कमाएंगे, किस तरह अपनी एक्सपेंशन करेंगे. इकोनॉमी उसी वक्त एक्सपैंड करती है जब आपके इंटरेस्ट रेट लो हों. अमेरिका में इंटरेस्ट रेट क्यों लो है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ नहीं है. जेरोम पावेल ने कहा 2018-19 में कि मैं इंक्रीज कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी और उन्होंने कहा अगले 2023 तक हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने. और क्या पता वो पहले बढ़ा दें क्योंकि उनकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो वरना वो इस वक्त इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते. इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बॉन्ड मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, इक्विटी मार्केट्स में एक हिकअप्स आएगा और बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो सफर करेंगे. तो मेरा ख्याल है हमारे जो गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनको थोड़ा सा समझदारी और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए और उनको पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करना चाहिए. हम सब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका दिल जो है हर वक्त इसी वजह से धड़कता है कि जी हमारे स्टेक्स हैं पाकिस्तान में. ये ना हो कि कल को स्टेट बैंक के गवर्नर को फायर करें और वह दूसरे दिन अमेरिका की फ्लाइट लेके चले जाएं क्योंकि उनके पास तो 2 पासपोर्ट है. 2 पासपोर्ट रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके स्टेक्स जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए और आप जो भी डिसीजन लें, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट. मेरा ये ओपिनियन है. ये बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन जो इंडिकेटर्स हैं जो गवर्नमेंट बताती है वो बेहतर हो रहे हैं, जैसे जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं और फॉरेन रेमिटेंस बेहतर हो रही है, और जैसे रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट्स के थ्रू जो कि 1 लाख से ज़्यादा खुल चुके हैं, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं बाहर से. तो डॉलर का रेट जो है वो भी, डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है, पाक रुपीज़ भी मजबूत हो रहा है. तो ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा या ये टेम्परेरी है? क्या सिचुएशन है ये? मैं तो इकोनॉमी को 2-2.5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पूरी जान लगा दी है कि किसी तरह इकोनॉमी टर्न अराउंड करें, लेकिन हमारे यहाँ इतने रेड टेपिज्म है,
ब्यूरोक्रेसी इमरान खान का साथ नहीं दे रही, और हमारे यहाँ इतने इश्यूज हैं कि उनको रिजॉल्व करते करते बंदा जो है वो पंजाबी में कहते हैं खजल ख्वार हो जाता है। तो इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर वो किसी एक इशू को रिजॉल्व करते हैं तो दूसरा इशू खड़ा होता है, दूसरा इशू रिजॉल्व करते तीसरा इशू खड़ा होता है। जो किसी भी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में वो दिन रात लगाते हैं कि किस तरह हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करें ताकि इकोनॉमी ग्रो हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी 2 साल पहले बड़ी मुश्किलात में थी, हम इसको अभी रिकवरी मोड में लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। रिसेंटली जो स्ट्रेंथ आई है रुपये में उसका ये है कि इनफ्लो आए बहुत ज्यादा डॉलर के, जिसकी वजह से रुपी स्ट्रेंथन हुआ है और डॉलर ने तकरीबन ऑलमोस्ट 8% अपनी वैल्यू जो है वो लूज की है। तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है रिकवरी मोड में है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं अक्सर 3-4 साल से बात यह भी कर रहा हूँ, मलेशिया की जो एग्जांपल है वो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मुनव्वर साहब, जिसकी वजह से इतना इन्वेस्टर आते हैं। और जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। और इन्वेस्टर जो हैं वो आजकल वो दो चीजों को देख रहे हैं, हाउ इफेक्टिव द गवर्नमेंट इज इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस वायरस। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटेजी है इसको कंट्रोल करने की या नहीं है। दूसरा वो देखते हैं कि लेबर फोर्स यहां पर कितनी प्रोडक्टिव है। मैं कह सकता हूं, मैं बाहर बैठा हूं, पाकिस्तान की लेबर फोर्स बड़ी प्रोडक्टिव है। हमारे लोगों को खाली अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत है। एक दफा हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हमारे लोग जो हैं इतने मुश्किल हालात में, हमने वॉर ऑन टेरर में सरवाइव किया, हमारे लोगों ने, हमारे फौज ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, लोगों ने इतनी कुर्बानियां की हैं। 80 से 100 बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान हुआ है पिछले 20 सालों में। फिर भी हमारे कौम जो है, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम शेर कौम है। शेर कौम अभी भी खड़ी हुई है और मेहनत कर रही है, जो आसान नहीं होता। कोई और कौम होती उसका तो जनाजा निकल जाता, वो तो उसका पट्टा बैठ जाता। लेकिन पाकिस्तानी कौम वो है, मैं कहता हूँ टाइगर कौम है कि हार नहीं मानती और आखिरी दम तक जो है हमारी कौम जो है वो फाइट करती है। तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, मजीद थोड़ा सा स्टेबिलिटी की जरूरत है और फिर टेक ऑफ स्टेज में जा सकती है। लेकिन इस तक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एड्रेस भी किया है, जो इन्फ्लेशन है। और 2 दिन पहले उन्होंने आवाम से बात की है, जो राब्ता किया है वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक एंगेजमेंट स्ट्रेटजी रखी है लोगों के साथ। लोगों की यही कंसर्न है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरह महंगाई को कंट्रोल करें। तो ये जो बार बार अब तीसरे चौथे ये फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये चेंज हो चुके हैं, तो इस पर भी बड़ी तनकीद की जाती है अपोजिशन की तरफ से, और इवन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं हमारे और जो सो कॉल्ड टेलीविजन एंकर्स बैठे हैं उनकी तरफ से भी इसको बड़ा हदफ तनकीद बनाया जाता है कि जी ये बार बार चेंजेस कर रहे हैं, तो ये यू टर्न ले रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, ये नालायक हैं, ये निकम्मे हैं, ये ना तजुर्बाकार हैं। तो इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो होना चाहिए जिसके स्टेक्स हों पाकिस्तान में, जिसके सारे जो जिसे कहते हैं ना ऑल द कार्ड्स वो पाकिस्तान में ही हो। मुझे याद है मेरे मरहूम फादर, तो शान साहब असद उमर तो थे, वो पॉलिटिकल फिगर भी थे और उनका खासा एक्सपीरियंस भी था, तो वो तो पाकिस्तान में स्टेक्स थे सारे उनके, तो उनको आईएमएफ के कहने पे हटाया गया फिर। मुनव्वर साहब मेरा ख्याल है असद उमर ने एक कंपनी चलाना, मुल्क को चलाना बड़ा फर्क है, और वो मेरा ख्याल है अपना होमवर्क नहीं करके आए थे, और जिसकी वजह से जो है उनको काफी जो है स्ट्रगल हुई। और फिर इमरान खान ने डिसाइड किया कि जी ये जो है इतने अभी कॉम्पिटेंट नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। और फिर जो बिजनेस कम्युनिटी थी भी जो थी हमारी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, उनके भी कंसर्न थे कि असद उमर साहब को इतना तजर्बा नहीं है, ना उन्होंने कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाई है कि आते साल आपको इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी, लेकिन उनके पास कोई ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं थी। मेरा जो अपना ओपिनियन है कि अगर इमरान खान बात करते हैं पाकिस्तान की, अगर आपको याद हो जो मेरे मरूम फादर ने बताया था, 1960 में हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था शोएब, और 1980s में हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर महबूबुल हक। मैं डॉक्टर महबूब हक को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे
बड़ा काम किया है। और ये मेरा व्यू है, मैं उस पर आता हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर की बात है, ये मैंने अपनी वालदा से चुराया है आइडिया कि इफ वी वांट टू चेंज द इकोनॉमिक डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू इन्वेस्ट इन फीमेल एजुकेशन। औरतों की तालीम दे के हम अपने मुल्क की जो है इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। लुक एट बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मलेशिया, टर्की, पोलैंड, उन्होंने किया उन्होंने अपने लोगों को तालीम दी है। 1990 में 1990 ने वियतनाम का पॉवर्टी लेवल 62% था। आज 31 साल बाद वियतनाम का पॉवर्टी लेवल 5% से भी कम है। किया उन्होंने, कोई तोप नहीं चलाई, उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखी है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी से कोई दंगा फसाद नहीं, उन्होंने फोकस किया है, लोगों को लगा दिया हमने एक्सपोर्ट करना है और हमने जो है अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर शुएब और डॉक्टर महबूबुल हक, उन्होंने एक इतनी कंसिस्टेंट पॉलिसी रखी थी कि फॉरेन इन्वेस्टर आते थे और हमारा जो 5 ईयर प्लान है, आपको याद होगा, वो कॉपी करके ले गए। और वो कॉपी करके ले गए। साउथ कोरिया आज जो है द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और हम पता नहीं 30th या 35th रैंक पर हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। तो मेरा ख्याल है हमारे उन लोगों को रखना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े अभी भी काबिल लोग हैं, डॉक्टर हफीज पाशा, जिन्होंने मुझे 14 जून 1996 में IBA में मेरा इंटरव्यू लिया था, वो बड़े काबिल हैं। डॉक्टर अशफाक हसन है, डॉक्टर शमशाद अख्तर है, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सारे लोग मौजूद हैं। मोहम्मद मियां सुमरो, मैं उनको पर्सनली जानता हूं क्योंकि हमारे उनसे मरासे में और मेरे मरूम फादर के बड़े अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर मोहम्मद मियां सुमरो बैठे हुए हैं, जो एक्स बैंकर हैं, वन ऑफ द टॉप बैंकर्स फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये सारे लोग वो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को इन लोगों की जो है वो मशवरे लेने चाहिए, और इन लोगों से मशवरे लेके आगे हम बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताइएगा कि एक ये नज़रिया पेश किया जाता है, एक आइडियालॉजी पेश की जाती है बाद लोगों की तरफ से जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था जहाँ पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उनका, तो उनका ये ख्याल था कि वो बेसिकली 23 मार्च के हवाले से था कि क्या पाकिस्तान ने वो अचीवमेंट कर ली है जो करारदाद पाकिस्तान में थी, जो नज़रिया पाकिस्तान था। तो उन्होंने कहा कि ये अभी कौमों की ज़िंदगियों में ये 70 साल का अरसा को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमसे बाद में आज़ाद हुए बहुत सारे ममालिक, और आज उनकी इकानमी, आज वहाँ पर एजुकेशन का जो शरह है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद उनकी इकानमी, वो सारी हमसे आगे निकल चुकी है बहुत ज़्यादा। आप बाकी फार ईस्ट के कंट्रीज़ को तो छोड़े, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की इकानमी हमसे बेहतर है। यहाँ पर बांग्लादेश की अगर कोई खबर आती थी दुनिया में तो सिर्फ ये आती थी कि वहाँ पे फ्लड आ गया है और इतने बंदे मर गए हैं। और अफगानिस्तान में पिछले 18 साल से आपको पता है कि जंग लगी हुई है, इसके बावजूद उनकी इकानमी जो है वो कैसे सस्टेन कर गई है, बेहतर हो गई है। और पाकिस्तान की इकानमी को क्या हुआ, ये को जो पिछले हुक्मरान थे, जाहिर है उनको डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने 30-35 साल गुजारे हैं। तो ये उनकी कोई नालायकी थी, उनकी कोई इसमें किसी किस्म की बदुरवानियां थी, क्या था ये? इसका एक ही जवाब है, वी लॉस्ट आवर वे। हमने फोकस नहीं रखा, हमने जो है अपने जेब भरे और हमने आवाम को जो है भूल गए। हम भूल गए कि हम पाकिस्तानी हैं, हम भूल गए कि जी इस कौम को आगे लेके चलना है। बस हमने अपना एक ही मकसद रखा कि जी पैसे कमाओ और बाहर भेज दो, मुल्क जाए खड्डे में। तो जिसकी वजह से आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे लोग, जहां पर हम उनका मजाक उड़ाते थे बंगालियों का, बंगाली अगे लंघ गए ने और असी पीछे रह गए हैं। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नहीं थी। कोई भी जो पिछले 30-35 साल में जो हुक्मरान आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो सत्यानाश कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा। इमरान खान जो हैं वाहिद पाकिस्तानी मुझे इस वक्त जो नजर आ रहे हैं, और हमारे पास ऑप्शन बड़े लिमिट है ही नहीं, मैं कहता हूँ कि जो जिनकी सिंसेरिटी पे किसी को कोई शक नहीं है, उस बंदे की कोई एक करप्शन चार्जेस नहीं है, एक पैसा उस बंदे का मुल्क से बाहर नहीं है। सारा जो उसने पैसा कमाया है क्रिकेट से बंदे ने, वो पाकिस्तान में लाके रखा है।
और उससे बड़ी बात, जो हॉस्पिटल बनाया है वो पाकिस्तान के लोगों की मदद से बनाया है, और वो पैसा बाहर तो नहीं गया हॉस्पिटल का, वो पैसा पाकिस्तान में रहा। उससे हॉस्पिटल से फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये हमें इन चीजों को देखना चाहिए। और फिर जो एक और अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने स्टेक होल्डर्स से कोई एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी नहीं रखी। जो बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ स्ट्रेटेजी रखी है, बिजनेसमैन से बात की है कि यार हम अपने मुल्क को किस तरह आगे लेके जाएं, रेगुलेटर से बात की है, अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरह कंसिस्टेंट बनाएं, किस तरह बिजनेस फ्रेंडली बनाएं क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर आए। अपने लोगों को एजुकेट नहीं किया ताकि यहाँ पर एजुकेशन से लोगों में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आए, लोगों को पीछे रखा। आज जो है बांग्लादेश में जो पावर्टी लेवल है वो हमसे कम है, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो हमसे ज्यादा हाई है, अफगानिस्तान का हमसे ज्यादा हाई है एजुकेशन लेवल। इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी में इन्वेस्टर देखते हैं कि किस मुल्क की जो लेबर है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, किस मुल्क में गवर्नमेंट स्टेबल है, किस मुल्क में गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी स्ट्रांग है, क्या उनके पास पैसे हैं कि वो फिस्कल मैन्यूवरिंग कर सके, पैसा लगा सके, किस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किस मुल्क में टेक्नोलॉजी की जो एवेन्यूज हैं वो ज्यादा है। अगले 3 से 4 साल में वो मुल्क ज्यादा तरक्की करेगा जहां पर टेक्नोलॉजी फोकस होगा। 1973 में आपको याद हो हेनरी किसिंजर ने एक बात की थी, हुएवर कंट्रोल्स मनी एंड एनर्जी विल रूल द ग्लोबल इकोनॉमी। आज 48 साल बाद वो मंत्रा चेंज हो गया है और मैंने कहा था हुएवर टेक्स कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई विल रूल द ग्लोबल इकोनॉमी। और उसमें एक ही मुल्क हमें नजर आता है और वो है चाइना। और हमें इस वक्त अपना जो पिवट है, वो जो फोकस है, पूरा चाइना की तरफ मूव कर देना चाहिए क्योंकि चाइना हमारा सिंसियर फ्रेंड है। और चाइना की जो जो तरक्की है पिछले 40-45 साल में उन्होंने की है, उससे हम फायदा उठा सकते हैं। पिछले 36 साल में चाइना एक वाहिद मुल्क है जिन्होंने 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को दे हैव गॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। आप मुझे एक भी मुल्क बताएं यूरोप में या अमेरिका में जिनकी इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि जिन्होंने 80 करोड़ 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। मॉडर्न हिस्ट्री में ये वाहिद हमें एग्जांपल मिलती है जहां पर एक मुल्क जो 1978 में 400 मिलियन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जब 22 दिसंबर 1978 में अपने उन्होंने डेंग सियाओपिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, मुनव्वर साहब 400 मिलियन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आज आप जाके देखें वहां पर 1000 बिलियनर है चाइना में, अमेरिका में खाली 700 बिलियनर है। तो 40 साल में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लोगों पे फोकस किया है, औरतों को तालीम दी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है, अपने लोगों को एक ही काम पे लगाया है, एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी स्किल सेट इंप्रूव करो और एक्सपोर्ट करो, जो भी चीज आए एक्सपोर्ट करो, जो भी मार्केट्स नजर आए उनमें एक्सपोर्ट करो। तो इस वक्त जो है हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक तो जंगी बुनियादों पे औरतों की तालीम पे बड़ा फोकस करें। माँ पढ़ी लिखी होगी, बच्चा पढ़ा लिखा होगा, बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो प्रोडक्टिव होगा। जब वो बच्चा लड़का या लड़की प्रोडक्टिव होगा, उनमें एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगी, वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इस वक्त हमारा जो एज ए नेशन सबसे बड़ा अलमिया है और लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो ये कि हमारा हाथ इस तरह है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ये हमने कुरान में भी पढ़ा है, अहादीस में भी है। तो मेरा ख्याल है हमें अपना ऊपर वाला हाथ मेंटेन करना है। उस तरह हो सकता है जब हम तालीम हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे हमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगी। दूसरा, हमें पूरे जो कौम है उसको एक ही चीज पे लगा देना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट करें, नई नई मार्केट तलाश करें, टेक्नोलॉजी फोकस करें, डेटा को किस तरह यूज करके हम अपने आप को डिसीजन मेकिंग में जो है इफेक्टिव करें। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी उस वक्त ही बन सकती है जब हम ये अपने आप को एजुकेट करें, अपना लोगों को फोकस करें, और इसी तरह कौमें आगे बढ़ती हैं और कौमें जो एजुकेटेड लोग हैं वही कौम को आगे लेके जाते हैं। शान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में तो कोई डाउट नहीं कि वो कौम मुल्क के साथ 100% सिंसियर आदमी है और इस वक्त कोई रिप्लेसमेंट भी उसकी नजर नहीं आ रही। तो फिर कौन से एलिमेंट हैं जो इसमें रुकावट है हमारी तरक्की में, हमारी इकोनॉमी जो है उसकी राह में रुकावट है, हमारी एजुकेशन की राह में रुकावट है, और हेल्थ रिफॉर्म्स जो हैं, जो
पार्लियामेंट में जो रिफॉर्म्स हैं, जो इलेक्शन से मुतल्लिक रिफॉर्म्स हैं, ये नैब से मुतल्लिक रिफॉर्म्स हैं, ये सारी रिलेटेड हैं। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी किसी गवर्नमेंट की, उस वक्त तक आप अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको नहीं बढ़ा सकते, जैसे आपने कहा ये। तो आप किन लोगों को ये मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, या किन लोगों को आप पिन पॉइंट करेंगे कि ये लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, ऊपर जाए, और इकोनॉमिकली हम लोग ऐसे करने वाले ना बने, बल्कि ऐसा हाथ बने, हमारा ऊपर वाला हाथ बने। तो क्या उसमें व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल्स? मेरा ख्याल है 3 इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो पॉलिटिशियन, स्पेशली द ऑपोजिशन। दूसरा नॉन स्टेट एक्टर्स, बहुत सारे हैं, आप जानते हैं। और तीसरा जो है कुछ मीडिया के लोग, जो बिल्कुल ही जो है वो फारिग हैं और उनको कोई काम नहीं है, वो मीडिया में आके खाली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। उनको इमरान खान की गवर्नमेंट की कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती। ऑपोजिशन ने पिछले 1-1.5 साल में बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। जो इफेक्टिव ऑपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए उनको मशवरे देती है। हमारी ऑपोजिशन को खाली एक ही चीज आती है कि किस तरह मुल्क को लॉकडाउन करें, किस तरह धरना करें, किस तरह ये मुल्क को जैम करें। ये तरीका नहीं होता, क्योंकि कुर्सी की हवस ये जो हमारी थर्ड क्लास ऑपोजिशन है इनको इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से मुनव्वर साहब हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। दूसरा जो एलिमेंट है वो है नॉन स्टेट एक्टर्स। आपको पता है बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो अपनी साजिशें करते रहते हैं और वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो तरक्की का पहिया है वो आगे ना बढ़ सके। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ में उनकी इतनी सारी इम्पेडिमेंट्स हैं कि हम उस इम्पेडिमेंट्स को ओवरकम करते करते हमें टाइम लग जाता है। जो पॉलिसी मलेशिया और दूसरे ममालिक में उसको 1 या 2 हफ्ते या 1 महीना लगता है इम्प्लीमेंट होने में, पाकिस्तान में उसको 6 महीने से और 1 साल लग जाता है। इससे पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कितनी ज्यादा जो है वो चैलेंजेस हैं कि जी हमें कोई भी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए हमें 6 से 12 महीने लग जाते हैं, और बाय द टाइम वो पॉलिसी आती है मार्केट में वो इररेलेवेंट हो जाती है। वो तीसरा आउटडेटेड जो हो है जाती है। या तीसरा जो है वो मीडिया के लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं जिनका स्किल सेट नहीं है। अब मैं तो मेरा ताल्लुक मीडिया से नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे मीडिया के लोगों को जानता हूँ जिनका स्किल सेट है। उसमें हारिस ज़मीर है दुनिया टीवी के, इमरान सुल्तान है आज टीवी के, अली नासिर हैं अब तक टीवी के। ये वो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो मुझसे पिछले 20 साल से जानते हैं, और उनको ये पता है कि जी शान सईद किस लेवल पे जाके बात करता है और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो कुछ बिजनेस एंकर्स मुझे लगता है उनका स्किल सेट नहीं है। वो ऐसा ही है कि जिनको कहीं ना जॉब मिले वो जो है वो बिजनेस एंकर बन गए और उन्होंने कहा जी हाँ बस हम ये यहाँ पर जो है आके अपनी दाल रोटी कमाएंगे, जो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो दाल रोटी भी कमाएं तो वो सिंसेरिटी के साथ कमाएं। इस तरह होना चाहिए कि जी आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें। हवाओं में ना तीर चलाएं। जब आप हवाओं में तीर चलाते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इंटेग्रिटी उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और लोग आजकल ज्यादातर टीवी और प्रेस को इसलिए देखते हैं कि कहां पर बंदे की क्रेडिबिलिटी है, इंटेग्रिटी है और सब्सटेंस है। इन 3 चीजों का बड़ा इस वक्त जो है वो फोकस है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का और ऑडियंस का। और जहां आप कोई गलत बात करते हैं, जहां पर आप कोई सिंड्रेला स्टोरी या जेम्स बॉन्ड स्टोरी या टैबलॉइड स्टोरी शेयर करते हैं, लोग बड़े तेजी से आपको स्विच कर लेते हैं और दूसरे लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल 3 लोग हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिशियन, कुछ मीडिया के लोग और नॉन स्टेट एक्टर, जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। टाइम इज रनिंग आउट। शान सईद साहब, क्विकली ये बताइएगा कि अगर आपको वजीर खजाना लगा दिया जाए या आपको गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया जाए, तो आप क्या वहाँ पे 2-4-3 चीजें करेंगे जो जो अभी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगते हैं, और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या आप इकदाम उठाएंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को नीचे करना, जितनी रेगुलेशंस हैं अननेसेसरी एसआरओज उनको अबॉलिश करना, बिजनेसमैन के साथ एंगेजमेंट स्ट्रेटजी रखना, और चाइनीज इन्वेस्टर्स को साथ बड़ा एग्रेसिवली मूव करना। ये 4 चीजें हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त करनी है। एक तो इंटरेस्ट रेट लो करें,
वो तो 7% है ऑलरेडी शान साहब, 7%। बहुत ज्यादा है, इसको ऐसा 5% होना चाहिए। दुनिया में इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, हमारा 7% इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। दूसरा, जितनी भी अननेसेसरी SROs हैं जिससे बिजनेसेस मूव नहीं कर रहे, वो सारी अबॉलिश करनी चाहिए। तीसरा जो है, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, FPPCI के, उनको एक कमरे में बिठा के उनके साथ 1 या 2 दिन लगा के पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बनाएं कि जी हमने मुल्क को किस तरह आगे लेके चलना है। इस मुल्क को बिजनेसमैन ने आगे लेके जाना है, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता इकोनॉमी को चलाने के लिए। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल इकोनॉमीज हैं, वहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये बिलीव करता हूँ प्राइवेट सेक्टर जो है वो इकोनॉमी को आगे लेके जाता है। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं क्रिएट करती, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करता है, प्राइवेट सेक्टर मुल्क को। और चौथा जो है, मैं इस पे फोकस करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ, चाइनीज इकोनॉमी पे मैं काफ़ी मैंने फोकस किया हुआ, मेरी काफ़ी इंसाइट्स वहाँ से आती हैं क्योंकि मेरी नेटवर्किंग है कि चाइना से हमें लेवरेज करना चाहिए, उनके एंटरप्रेन्योर से, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, उनकी हमें एक्सपर्टीज आनी चाहिए, उनको मराद देने चाहिए, और इस तरह जो है हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैंने जो कहा है, जंगी बुनियादों पे पूरे मुल्क की जो खवातीन है उनको कहें कि आप तालीम हासिल करें। थैंक यू सो मच शान सईद साहब, चीफ इकोनॉमिस्ट जुआई IQI मलेशिया। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होगी। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते जो लोग आपको कनाडा में सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जुआई IQI का ऑफिस जो है वो टोरंटो में है। यूसुफ इकबाल जो है कंट्री हेड है जुआई IQI, और उनका नंबर है 1647669922। किसी ने भी रियल एस्टेट के मुतालिक बात करनी हो, कैम्ब्रिज में, ओंटारियो में, वैंकूवर में, टोरंटो में, हम सारी इन जगह मौजूद हैं, और हम अच्छी ट्रॉफी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है रियल एस्टेट की, वो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर्स को हम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब।